ओके, सो लास्ट टर्म पे हम लोग एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे. द नेम ऑफ द थ्योरम वाज parallelogram on the same base and between the same triangles are equal in the area. इस थ्योरम को हम लोगों ने जब डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, तो देयर वर मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड सॉल्विंग दिस थ्योरम, proving this theorem. One method was suggested by one of you, and that was really very interesting. The method was set the two parallelograms, जो दोनों parallelograms हैं, ये दोनों parallelograms आपस में जो साइड ये दोनों parallelograms आपस में congruent हैं. Now once these parallelograms are congruent, that means that the two parallelograms will have equal area. So this is how the theorem we had proved. But there is one little bit problem. The problem with this thing is you can't use this theorem. You can't use the method that uses in the exam. एग्जाम में जब आपके पास से प्रूफ आएगा तो आप इस मेथड को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज योर टीचर इज हैबिचुएटेड, उसके दिमाग में ये घूम रहा है कि आप कुछ इस तरीके का मेथड करोगे. इस तरीके का मेथड मतलब क्या है बेटा, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 एज कॉन्ग्रुएंट. जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे बेटा, they will be congruent by side angle side. Side angle side कैसे लगाया सर मैंने, side angle side में इसको लगाया. First of all, AD will be equal to BC, which are opposite sides of a parallelogram. Secondly, AF will be equal to BE, which are also opposite sides of a parallelogram. And this angle will be equal to this angle, right? And this angle will be equal to this ये वाला AD and this angle will be equal to this angle. इन दोनों एंगल्स का जब आप डिफरेंस करोगे, यहाँ पे आप क्या करो, जिसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो जस्ट टू हैव ए क्लैरिटी. Since AF is parallel to BE, so I can say this whole angle 1 will be equal to this whole angle. Angle 1 will be equal to angle 2. Okay. Further, what you can say, since AD is parallel to BC, so what I will have, this angle 3 will be equal to angle 4. क्यों सर, क्यों ऐसा होगा? Because these angles will be alternate linear angles. Now angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. So what I will have, angle 1 minus angle 3. Sir, corresponding angles होंगे. Will be equal to angle 2 minus angle 4. I'm sorry, yes, the angles will be corresponding angles. I use the word as alternate interior, but they will be corresponding angles. आप लिख दीजिए, the two angles will be corresponding. अच्छी बात है, आप लोग सुनते हो, वरना मेरे को तो लगा कि आप लोग सुनते ही नहीं. So angle 1 minus angle 3 will be equal to angle 2 minus angle 4. So from here I can say that angle FAD will be equal to angle EBC. यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल FAD will be equal to angle EBC. इतना आपको लिखना पड़ेगा. तो इसके बाद आप ये कहोगे कि सर, by this I can say that triangle ADF is congruent to triangle BCE. यहाँ से आप ये कहोगे कि triangle ADF is congruent to triangle BCE. और अगर triangle ADF और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हैं, अगर ये दोनों triangles congruent हैं, that means अगर ये दोनों triangles congruent हैं, that means their areas will be equal, and once their areas will be equal, so I can say that area of triangle ADF will be equal to area of triangle BCE. ADF का जो एरिया होगा वो BCE के एरिया के इक्वल होगा. उसके बाद आप क्या करो, आप ये वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया को जोड़ दो. आप क्या करो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों साइड जोड़ दो. व्हाट विल यू फाइंड,
area of parallelogram ABCD will be equal to area of parallelogram ABEF. So this is how this theorem is to be proved. इस तरीके से आपको इस टाइप के theorems को प्रूव करना होता है. So this was the method of solving the theorem. Next theorem is the area of a parallelogram is the product of its base and the corresponding altitude. Area of the parallelogram is the product of its base and altitude. कैसे प्रूव करना है सर? बड़ी सिंपल सी चीज है. इस थ्योरम के बाद यहाँ पे जब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया, जब आप यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि then you can use this formula to solve many other things. ठीक है. अब देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं. पहली चीज इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक बात आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो पता कर लो, नहीं पता है तो याद कर लो. अभी बता रहा हूँ. पैरेललोग्राम होता ही है. रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेलल. ठीक है, इस बात को मानते हो आप लोग कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेलल? यस सर. आई एम राइटिंग हियर rectangle is a parallelogram. So this is notification for parallelogram. This is how parallelogram is. ठीक है. So rectangle is a parallelogram. ये बात हमें पता है, ये बात हम पढ़ के आए. Why ये बात हमें पता है? मतलब what is the use of this thing that we will discuss. अब देखो, हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD. इसका जो एरिया है that is the product of base and the corresponding altitude. अब करेंगे कैसे सर? अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं लिखना है given ABCD is a parallelogram in which AB is the base and AL is the corresponding height. उसके बाद आप लिखो to prove area of parallelogram ABCD is equal to AB into AL. To prove area of parallelogram ABCD is equal to AB into AL. ठीक है, ये चीज आपका हो गया to prove. Next thing that you are supposed to write here is construction. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर? आप कंस्ट्रक्शन करोगे, B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे CD पे. From B you will draw a perpendicular on CD such that ABML is a rectangle. From B you will draw a perpendicular. From B you will drop a perpendicular on CD. From A you will drop a perpendicular on CD such that ABML is a rectangle. ठीक है सर. अब ABML जो है वो मेरा एक रेक्टेंगल बन. अब याद करो, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था परसों, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी. क्या बताई थी? बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ क्या बताया था. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स. फाइन. तो अगर यहाँ पे, अब यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इफ ABML इज ए रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? AB मल्टीप्लाइड बाई BM. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाई BM. वेरी गुड. जब किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़. ठीक है. अब मैंने आपको ये बताया था कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं. क्या पढ़ के आए हैं सर? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया. अब देखो बेटा, नाउ थिंक एंड विजुअलाइज. ABCD इज ए पैरेललोग्राम जिसका बेस है AB and it is between the parallel lines AB and CD. Similarly, ABML
इज ए पैरेललोग्राम जिसका बेस है ए बी एंड इट इज बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? Do you know what is the meaning of this thing? The meaning of this thing is area of parallelogram will be equal to area of rectangle. रेक्टेंगल। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि area of parallelogram will be equal to area of rectangle और area of rectangle was AB multiplied by AL. Therefore, area of parallelogram will also be equal to AB multiplied by AL, which is nothing but product of base and the corresponding altitude, which is nothing but product of base and the corresponding altitude. ये चीज समझ में आ गई सबको? प्लीज से यस और नो। समझ में आ गई है तो भी बताइए। नहीं हाँ सर। हाँ तानिया बोलिए। आ गई सर। Sir, actually I shouldn't ask this out, but I had some confusion, sir. So shall I ask? पूछिए पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। आपने कहा कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये डी सी पर ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर, तो परपेंडिकुलर तो एक्चुअली लाइन के ऊपर होना चाहिए ना सर? फिर एल तो लाइन के ऊपर नहीं है ना सर? नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ना, लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। आप जो देख रहे हो लाइन का सिर्फ एक पोर्शन, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये जो CD है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस CD इज ए लाइन से, ठीक है? ये जो CD है ये एक लाइन का एक पोर्शन। फाइन, आपकी जो फिगर थी आपने वहां पे उतने पोर्शन आपका परपेंडिकुलर नहीं आया, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, आपका परपेंडिकुलर वहां पे आ गया। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। यस सर। ठीक, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक और मेथड मिली सर इसको प्रूव करने की। बताइए सर। मतलब सर ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सर, BCM और ADL सर, अगर मैं कुछ भी करके उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं सर, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस तरफ से मैंने ये BCM का ट्रायंगल को हटा दिया तो इस तरफ मैंने उतने एरिया ऐड कर दिया और फिर उतना वो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और उसके बाद सर कर सकता हूँ तो? चलो करके बता। सर मैंने कर लिया था सर कि BC इज इक्वल्स टू सर कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, फिर क्या किया? सर फिर मैं बोल सकता हूँ सर कि अगर ये BC मतलब इन दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया भी सेम हो गए। हाँ ठीक है सर, एरिया सेम है तो सर मैंने जो ये ABCD पैरेललोग्राम है उससे अगर मैं BCM जितना एरिया निकाल लूं सर, तो मैं उस तरफ मैं उतना ऐड कर दूं तो मेरे पैरेललोग्राम के एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों सेम है। तो उस तरफ मैंने इतना ऐड किया तो मेरे को पता चला कि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, फिर उससे हम कर सकते हैं कि AB into AL। हाँ कर सकते सेटिस्फाइड। प्रूफ तो ये करना है the area of a parallelogram is based into height। हाँ तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इस वाले एरिया को बेसिकली इन्होंने इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो ABCD है ना, ये जो ABCD है इसमें से मैंने इतने एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने जाके ऐड कर दिया। सो दिस फाइनली बिकम्स ए रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी AB into A। यही बोल रहे हो ना श्रेय? यस सर, यही बोल रहा था। हाँ सही है, आई एम सेटिस्फाइड विद। बट again these methods, these small discoveries, inventions that you guys keep on making, please don't apply these inventions in your school। Please ऐसे किसी भी invention को स्कूल एग्जाम में ना अप्लाई करो, otherwise unnecessarily lose your marks। क्योंकि स्कूल का जो टीचर होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर 40+, 45+, ठीक है? उन लोगों को एंड दे आर टीचिंग फॉर लास्ट 20 years, 30 years, नहीं 30 years तो नहीं, 20 years, 15 years, तो उनको वही चीज देखने की आदत है।
तो प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग। हाँ, इन चीजों को आप एग्जाम में यूटिलाइज करो, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूटिलाइज करो, आप अच्छे से यूटिलाइज करो, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, वी कांट डू एनीथिंग। जो हमें देखने की आदत है, जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखते हैं, हम इसके अलावा कुछ अलग नहीं देखते। लेकिन आप लोग देखो, आप लोग सोचो, जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप मेरे को बताओ, whether you have to apply it or you don't have to apply it. आपको उस एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है, बट फिलहाल जो भी आपके दिमाग में आता है ठीक है। चलो, I'll just have a sip of water. Want to think like you are. मैं जैसा आप लोग सोचते हो वैसा मैं सोचना चाहता हूँ। हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग मतलब the education system that we have until this new policy is implemented, हम एक फिक्स लाइन पे जाते हैं, उससे जो डेविएट करता है हम उसको वापस से खींच के अपनी लाइन पे जाते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया की जो IITs they're not even in the top universities of the world. This is a very shocking thing. Because वहाँ पे पहले ईयर से फर्स्ट डे से the thing that matters, the thing that matters is CGPA. They don't speak about innovations. They only speak about CGPA. और यही हाल दूसरे कॉलेजेस का भी। हमारे बोर्ड एग्जाम का भी 95%, 96%, 98%, इसके नीचे वाले का देख। आप लोगों को अभी तो इस साल तो चलो अनफॉर्चुनेटली देयर इज दिस कोरोना थिंग, इसीलिए DU का ज्यादा हल्ला नहीं हुआ है। अदरवाइज फॉर द लास्ट 3 years, for the last many years, I keep on watching the cutoff of this Delhi University. आप लोग को पता है सेंट स्टीफेंस का या अनदर वेरी गुड कॉलेजेस या मिरांडा हाउस, इन कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है फॉर BSc, फॉर डूइंग BSc? इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ जाता है दैट इज 99%। 99% इज द कट ऑफ। इसके ऊपर वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर मोर और लेस फोकस्ड अपॉन परसेंटेजेस। और परसेंटेज कब मिलेगा बेटा? जब आप उसी लाइन पे पढ़ोगे जिस लाइन पे आप पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए। So what I want to say is, sir, अगर हम लोग yes sir, JEE is said to be one of the most toughest exam in the world. सर हम लोग एक दुनिया का सबसे toughest exam देके सर, जो सर 11th और 12th पूरा सिलेबस बहुत डीप, मतलब बहुत ज्यादा डीप जिसके अंदर आता है सर, वो देके भी हम लोग वर्ल्ड की टॉप 100 में भी नहीं जा रहे हैं सर। और कहाँ सर, मैं कई लोगों का वो देख रहा था सर इंटरव्यू, जो MIT में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में सर, वो बोल रहे थे कि सर जो हम लोगों ने JEE में क्वेश्चंस किए वो हम लोगों को अपने कॉलेज लाइफ में भी नहीं यूज किए, मतलब कहीं पे पढ़ाए भी नहीं है। तो सर मतलब आप इतना मुश्किल एग्जाम देख के वहां पे जा रहे हो सिर्फ। The next thing is area of triangle. अब area of triangle भी भाई हमें कैलकुलेट करना सिखा दे, कर लो भाई। 2 triangles on the same base and between the same parallel are equal in area. जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, अगर वो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और अगर वो दोनों ट्रायंगल between same parallel lines हैं, तो the 2 triangles will be equal in area. What we will do here, my dear friend, since we have discussed lot of things on innovation, so we will only discuss about the innovative part कि हम लोग इस प्रूफ को जल्दी से जल्दी आसान शब्दों में कैसे कर सकते हैं। Rest of the thing that I will just read out for you, or you guys try it yourself. If you don't get it, I will help you. यहाँ पे देखो, मुझे प्रूफ करना है कि area of this triangle is equal to area of this triangle. ये मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखो, हाँ बोलो सर। मैंने यहाँ पे जितने प्रूफ थे सर उसमें देखा कि सर ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करते सर, कुछ और ही करते हैं सर। तो इसमें भी सर कुछ और करके, लेकिन हम डायरेक्ट हाफ इनटू बेस सर इसमें डायरेक्टली हो सकता है, कर सकते हैं। हम हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड करके डायरेक्ट 2 लाइन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगेन द फैक्ट इज, मैंने आपको बताया, यू कांट यूज दिस थिंग इन योर एग्जाम।
You can't use this thing in your exam. यहाँ पे अपन जब डायरेक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to half into, यहाँ से मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसको अपन AE बोलते हैं, यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको PS बोलते हैं, हाफ इंटू AE इंटू BC, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, दिस इज PBC, will be equal to half into PS multiplied by BC। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, since both of them are between same parallel line, ये AD, ये जो है AD and BC, they are two parallel lines, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। What I mean to say here is AE is will always be equal to PS। AE जो है वो हमेशा PS के इक्वल होगा, because that is the perpendicular distance between the two parallel lines। So अगर आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, so from first and second I can say that area of triangle ABC will be equal to area of triangle PBC। तो सर कैसे कह दिया भाई, AE इक्वल होता है PS की, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। BC जो है, BC is equal to BC जो कि बेस ऑफ द ट्रायंगल है। जब ऐसा है हो गया, काम खत्म। जब इस तरीके से है तो काम खत्म। रियली I too don't know the reason why this proof was not done like this। जब आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं, बट रियली सच पूछो तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है। चलो, तो इसका जो प्रूफ है जो बुक में दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार कर लेना, और अगर कोई यहाँ पे दिक्कत आती है तो वी विल डिस्कस इट इन द डाउट क्लास, और व्हेन फाइंड वी विल डिस्कस इट। बट फॉर द टाइम बीइंग इस प्रूफ को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, डोंट यूटिलाइज दैट मेथड एग्जाम में, मत यूज करना अननेसेसरी, यू विल लूज इट। सो डोंट यूटिलाइज दैट मेथड इन द एग्जाम। You can use that method for understanding that इसको कैसे जल्दी से जल्दी समझ सकते हो। So please don't utilize that method। Next proof is, this chapter is full of proofs। मैं क्या, this chapter is full of। Next is, if a triangle and a parallelogram are drawn on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is equal to half of the area of parallel। कहने का इनका मतलब ये है सर कि एक पैरेललोग्राम है BCDE। देखो ये जो है BCDE, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल। एक ट्रायंगल है ABC। अब ये दोनों पैरेललोग्राम और ये जो ट्रायंगल है, इनका बेस सेम है। बेस क्या है इनका? BC, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन से सेम पैरेलल लाइंस में है? एक तो ये वाली पैरेलल लाइन हो गई और दूसरी ये वाली पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इन दोनों के एरियाज को मुझे ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के। एंड बिलीव मी, दिस इज वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है सर, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले पैरेललोग्राम के एरिया रिपीट करेंगे, वो आपकी आवाज स्टटर हो रही थी, इधर जरा प्रॉब्लम। ओके, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो? एक बार सर, मैं तुम ट्राई करो, जो सोचा आपको बताऊं। कर लो। सर इसमें पैरेललोग्राम के जो बेस है वो ट्रायंगल के बेस के इक्वल है, और वो दोनों के पैरेलल जो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल है। तो उससे सर हमको पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो जाएगा। I was also doing this। देखो बेटा, आपके दोस्त ने जो बोला, actually I was also doing the same thing। So let us discuss what I was doing and what he was trying to say। Area of पैरेललोग्राम BCDE, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस यहाँ पे क्या है? BC। अब एक बात यहाँ पे याद रखो कि आप E से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे
डी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे और ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तीनों की लेंथ इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी सर? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज द सेम। मैं क्या करूं, होता है तो दिस विल बी BC मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to half multiplied by BC multiplied by A. Area of triangle ABC will be equal to half multiplied by BC multiplied by A. इसका मतलब जानते हो क्या निकल के आया? कंपेयर कर लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो कंपेयर कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I can say that area of triangle is equal to half of area of parallelogram. कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? From first and second, I can say that area of triangle is equal to half of area of parallelogram. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी केस के लिए प्रेजेंट होगा, आप यहाँ पे ट्रायंगल बना दो तो भी ये चीज करेक्ट होगी। इसलिए करेक्ट होगी क्योंकि डिस्टेंस बेस तो आपका ऑलरेडी सेम है, बेस तो सेम लेके चल रहे हो, and distance between the two parallel lines is always the same. This is the basic definition that we had studied in the chapter on Euclid's geometry. ये बेसिक डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा 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 क्या होती है, सेम होती है। ये दूरी मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई एम नॉट टॉकिंग द स्लैंट डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी, whenever if I am talking about 2 points, the distance between the 2 points or the distance between the two places is taken as the shortest distance. आप गूगल मैप पे कभी कोई दो प्लेस के डिस्टेंस को देखोगे तो हो सकता है डिस्टेंस आपको दिखाएगा 10 किलोमीटर, और जब आप एक्चुअल में जाओगे तो हो सकता है वो जो डिस्टेंस होगा दैट कम्स आउट टू बी 15 किलोमीटर। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वो जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। between the sum of two triangles. हाँ बोलिए। सर बोलिए। आपने जो सर उसका मतलब ये है कि जो AL जो परपेंडिकुलर है, जो DM जो परपेंडिकुलर है सर, अगर हम लोग E से भी कोई परपेंडिकुलर नीचे लाते हैं, सर सपोज अगर वो परपेंडिकुलर EF होगा सर, तो तीनों परपेंडिकुलर इक्वल होंगे ना सर? यस, वो तीनों परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। हाँ सर, आपने इसीलिए BC को AL किया ना? हाँ, मैंने इसलिए BC किया। हाँ, इसीलिए चाहो तो DM भी कर। चलो कर सकते नो प्रॉब्लम। सर आप इसे रिपीट कर सकते हैं? चलो नहीं सर, I'll just repeat as बाकी सब तो समझ आ गया। ठीक है, I'll just repeat. The theorem is if a triangle and a parallelogram are drawn on the same base and between the same parallel, then the area of the triangle is equal to half of the area of parallelogram. ठीक है, ये आपका थ्योरम है, इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। So the exact proof that is given in your book that I have given you as a homework, but the proof that I want to tell you is something like that. देखो, अपन जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दिस वी नो। अपन ये भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज बेस इंटू एल्टीट्यूड, दिस आल्सो आई नो। एक थर्ड चीज और जो हम जानते हैं वो हम ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, ये तीन चीजें हम जानते हैं, इन तीन चीजों का इस्तेमाल हम करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। First of all, I know that this BM is parallel to AD. Therefore, I can say AL will be equal to BM, or for example, if I'm drawing a perpendicular from here, this here, EF.
AL will be equal to DM will be equal to EF, ये चीज हमारे पास है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, this will be equal to half into AL multiplied by BC. Area of triangle ABC will be equal to half into AL multiplied by BC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप इंटीग्रेशन की होता है। सिमिलरली area of BEBC will be equal to BC multiplied by EF. BC multiplied by EF. Don't be in a confusion that this point C और point F दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों पॉइंट्स कभी भी कोइंसाइड नहीं करते, इस कंफ्यूजन में मत। So area of parallelogram BEDC will be equal to BC multiplied by EF. But now I also know that, but EF is equal to AL. Therefore, this area will be equal to BC multiplied by EF. सर मतलब इधर हमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पहले से पता था, वरना सर जनरली हर जगह पे हम लोग वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। बेटा एरिया के ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। सर पर वो ये फॉर्मूला पिछले वाले थ्योरम सर ये वो भी हम पढ़ते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो थ्योरम के तरह लिया इसलिए। नहीं, see, I am saying this can be done like that. Why they have not done that, I don't know. Why they have not done that, I don't know. But it can be done like that. और जो proof है, ये बुक में जो proof है, that I have given you as homework, या आपने एक बार try करना, नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता है, तो we will discuss. सर ये BE लाइन क्यों ड्रॉ की है सर फिगर में, ये समझ में नहीं आया। BE लाइन बेटा, BE तो पैरेललोग्राम है भाई, BECD इज द पैरेललोग्राम, ये जो है ये पैरेललोग्राम है ना। ओके सर, मुझे लगा BA और DC सर वो ज्यादा पैरेलल लग रहे थे BE से। हाँ सर, ये देखना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ सर पैरेलल कोई एंगल से नहीं। एरिया बेटा लगने से नहीं होता है, जो दिया हुआ है वहां से होता है। So from first and second, I can say that this area of triangle will be equal to half of the area of triangle. ठीक है, इस तरीके से this proof is to be, इस तरीके से this proof is to be done. जो exact method है proof करने का, ये आप लोग ट्राई करना, again and again आपको ट्राई करना, नहीं हो पाता है, इसलिए जो आप लोग को डाउट क्लास है उसमें अपन डिस्कस करें। सर इसमें एक छोटा सा प्रूफ ये भी हो सकता है ना कि पैरेललोग्राम डिवाइड्स मतलब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स into two congruent triangles, तो मतलब दो congruent triangles हो गए, ट्रायंगल आधा हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले ये बताना, लेकिन बेटा उस केस में एक प्रॉब्लम है। उस केस में प्रॉब्लम ये है, आपने बोला कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे अगर ये BEDC आपका एक पैरेललोग्राम है, तो आप कॉन्क्लूसिवली आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो आप कह सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम। बट जब आप थ्योरम बनाते हो तो यहाँ पे इस लाइन पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, दिस थ्योरम शुड होल्ड गुड फॉर ऑल द पॉइंट्स। अब दूसरे पॉइंट्स के लिए कैसे प्रूफ करें, ये आपने एक पर्टिकुलर केस लिया है, एंड आई सैल्यूट योर क्रिएटिविटी, यस दिस इज गुड, टू गुड। बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि आपको और भी पॉइंट्स लेने है ना, ये जो आपने जनरल, ये जो आपने पर्टिकुलर चीज किया है, दैट शुड होल्ड फॉर अदर जनरल थिंग्स आल्सो। लेकिन यहाँ पे एक काम मैं कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इस लाइन पे
इस वाली लाइन पे जितने भी ट्राइंगल्स होंगे ना, सारे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ये मैं प्रूव कर सकता हूं। गिवन देयर बेस इज बीसी, बेस तो बीसी होगा ही सबका, लेकिन ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि जितने भी ट्राइंगल्स होंगे इस लाइन पे जिनका बेस बीसी है, उन सारे ट्राइंगल्स का। So, my dear friends, thus we have reached to a one more method of solving this question, solving this theorem. क्या मेथड था सर? आपके फ्रेंड ने बोला बेटा व्हाट इज अ गुड नेम? सर साहिल। साहिल, ओके। साहिल ने एक मेथड बताया मेरे को, और साहिल ने क्या बताया? देखो साहिल ने ये बोला कि सर, हाँ सर, एक पैरेललोग्राम है और हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उस पर वो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया जो होता है, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो एरिया होता है इक्वल होता है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट the area of the triangle formed by the diagonal and the sides of the parallelogram will be equal to half of the area of the parallelogram. आप बोल सकते हैं, very good. But so his point was, can I use this fact to prove this theorem? तो देखते, let us see, कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes, sir. ये एक पैरेललोग्राम है। पर आज तक तो मैं यही Yes, हो सोच जाएगा। रहा क्या सोच रहे थे? तो आज तक मैं यही सोचता था कि सर यही रीजन होगा क्योंकि डायगोनल दोनों को इक्वली मतलब बाइसेक्ट कर देता है सर उसको बिल्कुल। हाँ तो ये रीजन होता है ना, मैंने कब मना किया कि ये रीजन नहीं होता है? हाँ कृष्णा पूछिए बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। तो ये रीजन तो होता ही है। अब ठीक, चलो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में बात है। आई हैव टू प्रूव फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, आई हैव टू प्रूव फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, तभी मेरा थ्योरम बना ना। भाई आपने तो एक ट्रायंगल की बात कर दी सर, लेकिन मेरे पास तो और भी कई सारे ट्रायंगल्स होते ना, तो वो कैसे प्रूव करूंगा? वो भी आप प्रूव कर सकते हो। भाई इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जहां पे बेस AB है, द बेस इज ऑलवेज द सेम। जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे दोस्त, सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, and the altitude or the perpendicular distance between two parallel lines is always the same. तो यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल बना लो, E, F, G, जितने भी ट्रायंगल बनाना है बना लो, सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा that will be equal to area of this triangle, and area of this triangle is equal to half of the area of parallelogram. So from 1 and 2 I can say that area of the triangle, from 1 and 2 I can say if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel lines, then the area of the triangle is equal to half of the area. ठीक है? So there are n number of ways of proving any theorem. The thing is, your concept should be, and I'm working on that. I'm working on that. So, next thing is, the area of a trapezium is half the product of its height and the sum of the parallel sides. जो trapezium का एरिया होता है वो half of the product of height and the sum of parallel sides. तो करना क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कि trapezium का एरिया हुआ क्या। भाई ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, AB और CD, इन दोनों की कुछ लेंथ दी होगी A plus B, तो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ H मल्टीप्लाइड बाय A plus B। अब इस प्रूफ को करने के लिए कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल सा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। अब मुझे नहीं पता आगे कैसे किया इन लोगों ने, बट जो मैं देख पा रहा हूं वो मैं क्या देख रहा हूं, देखो भाई ध्यान से देखो।
दिस ट्रेपेजियम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स, बोलो हाँ कि ना। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल नंबर ACB और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ADC। दिस ट्रायंगल, दिस ट्रेपेजियम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ACB और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ACB के एरिया की बात करते हैं, सो इट विल बी हाफ इनटू H मल्टीप्लाइड बाय A। अगर मैं ट्रायंगल ACB के एरिया की बात करूं, इट विल बी हाफ इनटू H मल्टीप्लाइड बाय A। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू H मल्टीप्लाइड बाय B। कैसे सर, कैसे H मल्टीप्लाइड बाय A, H मल्टीप्लाइड बाय B, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। चक्कर कुछ नहीं है बेटा, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है, पढ़ा था पहले चैप्टर में, यूज कर दो। तो A से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे CD पे, तो उसकी हाइट, उसकी लेंथ अगर आप H मान के चल रहे हो, तो अगर आप C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे AB पे, तो बेटे उसकी हाइट भी जो है ना, उसकी हाइट बोल लो या लेंथ बोल लो, that will also be equal to H। अब हमने पढ़ा था कि भाई एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों को ऐड कर दो, so it will be half into H into A plus half into H into B, which is nothing but half into H into A plus B। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। मुझे नहीं पता आगे कैसे, क्या आई डोंट नो, बट हो गया प्रूफ। अरे बोलो हाँ या ना, ये हो गए। यस सर। यस सर। सो मत यार, नहीं तो फिर मेरे को गलतियां करनी पड़ेगी, गलती करूंगा तो फिर आपको सर सर ने गलती कर दी। इट शुड बी ACN एंड नॉट ACB। वेयर ACN, N कहा बेटा, ACN नहीं होगा बेटा, ACB ही होगा ना। मैंने इस ट्रेपेजियम को क्या जब डायगोनल ड्रॉ किया, तो दैट डायगोनल हैज डिवाइडेड द ट्रेपेजियम इनटू टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती थी, एक क्लोज फिगर जिसकी तीन साइड्स हो। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती थी, एक क्लोज फिगर जिसकी तीन साइड्स हो। जब मैंने AC को ज्वाइन किया, तो एक मेरे पास फिगर नंबर 1 जो मिली, उसमें उसकी साइड्स क्या क्या है, AC है, BC है और AB है। ठीक है, दूसरी मेरे को जो फिगर नंबर 2 मिली, उसकी साइड्स क्या क्या है, AB है, CD है और AC है। तो यहाँ पे मेरे को दो ट्रायंगल्स मिल गए, दोनों ट्रायंगल्स का मैंने एरिया लिया। Just a minute, just a minute. My battery has degenerated. Just a minute. Okay, am I audible? Please confirm. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. So the perpendicular will always be the same. यहाँ से आप perpendicular drop कर रहे हो, तो this perpendicular drop on this base will always be the same. So area of triangle ABD will be equal to half into AL into BD, and BD is nothing but BC divided by 2. BC divided by 2. So this will be equal to half of area of triangle ABC. Similarly, area of triangle ADC will be equal to half into AL multiplied by CD. Now this CD is nothing but BC divided by 2. So this will also be equal to half of area of triangle ABC. Thus I know that in both the cases, the area of this triangle, the median divides the triangle into two triangles which are of equal area. This was perhaps the last theorem of this topic. Yes, this was the last theorem of this topic. Now let us quickly summarize the things and then I will leave.
Theorem number 1, a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. पहली चीज. Theorem number 2, parallelogram on the same base and between the same parallel lines are equal in area. Theorem number 3, the area of a parallelogram is the product of its base and the corresponding altitude. Now this is very important, corresponding altitude. Theorem number 4, two triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area. Theorem number 5, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel lines, then the area of the triangle is equal to half of the area of the parallelogram. ठीक है, ये था. अरे क्या हो गया? Okay. चैप्टर खत्म हो गया. Theorem number 6, the area of a trapezium is half the product of its height and the sum of the parallel sides. And theorem number 7 is median of a triangle divides the triangle into two triangles of equal area. So this was the theoretical aspect of the chapter. Next turn pe we will discuss the questions. Next turn pe we will